Hello students, before starting the lesson, I want to share some things with you. Importance of trees. Trees are the best friends of humanity. They purify air and provide fruits, woods, etc. to human beings. They provide food for birds and animals also. Many creatures make their habitat on trees. Let us see another points also. The importance of trees. They remove carbon dioxide, provides fruit, provide medicines, cools our houses, reduce erosion, prevents flooding, add oxygen. So we have to plant a tree and save our earth. So today's our lesson is based on trees. The lesson is the story of Amrita from class 4th EVS NCERT. So students, this is a true story from long ago. Khejdi village is near Jodhpur in Rajasthan. The people of this village took great care of the plants, trees and animals. The people of village followed the teachings of Jambaji, who taught them the importance of plants and animals. Amrita was a little girl in the village who was very fond of trees. She played for hours in the shade of the trees with her friends. After many years, when Amrita had grown up, she saw some strangers in her village with axes in their hands. They had come to cut the trees on king's orders. For this, they hurt Amrita and many other villagers. More than 300 people lost their lives. The king was affected greatly to see the villagers' love for trees. He ordered that from then on no tree would be cut and no animal be harmed in that area. People of this area are called Bishnois and they still follow the teachings of Jambaji. Now let us see the important points of this lesson. The story of Amrita. This is a true story from long ago. Almost 300 years ago in village called Khejdi lived Amrita Devi Bishnoi, later who led the famous Chipko movement to save trees. The village got its name because of the many Khejdi trees that grew there. इस विलेज का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा था? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खेजड़ी ट्रीज थे. खेजड़ी ट्रीज इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान. तो ये खेजड़ी विलेज जो है वो कहाँ है? राजस्थान में जोधपुर में है. जोधपुर के पास है. जैसे आपको पिक्चर मैप में दिखाई दे रहा है और आपको पिक्चर में खेजड़ी ट्री भी दिखाई दे रहा है. ये जो पिक्चर है किसकी है? खेजड़ी ट्री की है. The people of this village took great care of the plants, trees and animals like goats, deer, etc. The people of the village remember what their elders used to tell them. They say, अगर पेड़ है तो हम है. Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. तो इस विलेज के जो लोग थे वो उस विलेज में जो प्लांट्स, ट्रीज या एनिमल्स थे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे. वहाँ पे सारे एनिमल्स बहुत बिना डरे घूमते थे और उनका कहना था, वहाँ के लोगों का कहना था कि अगर पेड़ है तो ही हम हैं, ट्रीज है तो ही हम लोग जी सकते हैं. इसलिए वो उन ट्रीज का, प्लांट्स का, एनिमल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे. उन लोगों का कहना था कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं. एंड दैट इज़ ट्रू. दिस इज़ द फैक्ट. वी कैनॉट सर्वाइव without plants and animals. So we have to save them. We have to take care of them. Now let us see Chipko movement. What do you mean by Chipko movement? Originally Chipko Andolan or Chipko movement dates back to the 13th century and was started by Rajasthan's Bishnoi community. The movement was led by Amrita Devi Bishnoi. She along with her daughters and other people of the village hugged trees and didn't let the king's men to cut the trees down for wood ordered by the king. Many people including Amrita died to save trees. Even though in the middle of the desert this area is green and animals roam freely without fear.
तो ये जो चिपको आंदोलन है ये किसने स्टार्ट किया था? बिश्नोई नाम की जो कम्युनिटी है राजस्थान में उन्होंने शुरू किया था। ये जो कम्युनिटी है ये लोग अपने प्लांट्स का, ट्रीज़ का, एनिमल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और एक बार इनके राजा ने जब ऑर्डर दिया कि जाओ वुड कट करके लाओ, ट्रीज़ को कट करके लाओ, तो इन लोगों ने उनको रोका और उन्होंने ये आंदोलन किया। इसके लिए इन्होंने अपनी जान तक गंवा दी और उन्होंने अपने राजा को अपना जो ऑर्डर था उसको वापस लेने पे मजबूर किया। और ये जो जगह है ये डेजर्ट होते हुए भी ग्रीन जगह है और यहाँ पे आपको चारों तरफ हरियाली भी दिखाई देगी और वहाँ पे एनिमल्स भी दिखाई देंगे जो बिना डर के यहाँ वहाँ घूमते हैं, उनको कोई डर नहीं है। Now let us learn about the खेजड़ी ट्री। The खेजड़ी ट्री is found mainly in desert areas। खेजड़ी ट्री कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में। It can grow without much water। इसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। Its bark is used for making medicines। इसकी जो बार्क होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है? मेडिसिन्स बनाने के लिए। People cook and eat its fruits, beans। People इसके जो लोग जो है इसके जो फ्रूट्स होते हैं उसको पकाकर खाते हैं। Its wood is such that it will not be affected by insects। इसकी जो लकड़ी है वो उस पे इंसेक्ट्स का या दीमक का असर नहीं होता है। Animals in this area eat the leaves of the खेजड़ी। इस एरिया के एनिमल्स जो है वो खेजड़ी ट्री के लीव्स को खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। और आपकी तरह के बच्चे जो आपके जैसे जो बच्चे हैं वो इसके शेड में, वो इसके इस पेड़ के छांव में खेलते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ द लीजेंड अमृता बिश्नोई। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये सभी लोग मिलके किस तरह से इन्होंने घेरा बना रखा है और वो ट्रीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। Is there a place near your house, school or along the roadside where trees have been planted? क्या कोई ऐसा प्लेस है आपके घर के आसपास जहाँ पे ट्रीज लगे हुए हैं? आंसर इज यस, देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। तो कोई भी प्लेस आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पार्क के बारे में। Why were they planted there? वहाँ पे ट्रीज क्यों लगाए गए हैं? आंसर इज दे आर प्लांटेड देयर टू प्रोवाइड शेड, फ्रूट्स एंड प्यूरिफाई द एयर इन द सराउंडिंग्स। वहाँ पे पेड़ इसलिए लगाए गए कि ताकि उससे हमें छांव मिले, फ्रूट्स मिले और एयर भी प्यूरिफाई हो सके, एयर पोल्यूशन भी कम हो सके, इसलिए ये पेड़ वहाँ पे लगाए गए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? हु डज दिस? क्या आपने कभी देखा है इनकी केयर लेते हुए किसी को? कौन करता है ये सब? आंसर इज यस, आई हैव सीन सम पीपल टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज। दे आर कॉल्ड गार्डनर्स एंड देयर आर 4 ऑफ देम वर्किंग इन दैट पार्क। तो मैंने देखा है कि जो गार्डनर है पार्क के वो इसकी केयर लेते हैं। वो 4 लोग हैं जो पार्क में काम करते। तो ये आंसर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज? हु ईट्स दिस फ्रूट्स? क्या आपने इन ट्रीज के ऊपर कभी फ्रूट्स देखे हैं? कौन खाता है इन फ्रूट्स को? आंसर इज यस, आई हैव सीन मैंगो एंड गुआवा ऑन द ट्रीज। पीपल हु टेक केयर ऑफ द पार्क ईट दोज एंड आल्सो सम बर्ड्स ईट दिस फ्रूट्स। हाँ, मैंने मैंगो और गुआवा फ्रूट्स देखे हैं इस ट्रीज के ऊपर और जो लोग इस पार्क की केयर लेते हैं वो लोग इन फ्रूट्स को खाते हैं और जो बर्ड्स इन ट्रीज के ऊपर बैठती है वो भी इन फ्रूट्स को खाती है। Next question is Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? क्या आपने कभी कोई ऐसा प्लेस देखा है जहाँ पे बिना ट्रीज लगाए, बिना प्लांट्स लगाए अपने आप कुछ प्लांट्स और ट्रीज वहाँ पे ग्रो करते हैं? तो आंसर इज येस, ऑन एम्प्टी प्लॉट्स, फील्ड्स एंड अलोंग द रोड साइड ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन। तो आपने देखा होगा खाली प्लॉट्स या खाली खेत या खाली एरिया या रोड साइड एरिया होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा ग्रास और कुछ प्लांट्स या कुछ ट्रीज अपने आप ग्रो करते हैं, जबकि उनको कोई भी स्पेशली लगाता नहीं है। तो कभी आपने सोचा ये कैसे ग्रो करते हैं अपने आप?
Next question is trees in danger. Do you remember what the elders of this village used to say? ट्रीज़ आजकल बहुत डेंजर में है क्योंकि हम लोग ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, उससे हम फर्नीचर बनाते हैं या हम प्लॉटिंग करते हैं। तो आपको याद है कि हमारे एल्डर्स क्या बोलते थे इसके बारे में, ट्रीज़ के बारे में कभी उनको सुना है बोलते हुए? Yes, I remember the elder of the village used to say, अगर पेड़ है तो हम हैं। This refers to that plants and animals can survive without humans, but it's impossible for humans to survive without them. तो हमें याद है ना कि गांव के लोग कहते हैं कि पेड़ है तो तभी हम जिंदा हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो यही बात हमारे गांव के जो लोग हैं, जो एल्डर पीपल है, वो हमें ये बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? डिस्कस दिस इन योर क्लास। क्या आप सोचते हैं कि क्या हम बिना ट्रीज के या बिना एनिमल्स के रह सकते हैं? Answer is no, it's not possible for humans to live without trees and animals as they provide oxygen for breathing and food to eat. Yes, हम लोग ट्रीज़ और एनिमल्स के बिना नहीं रह सकते क्योंकि ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देती है, फूड देती है, एनिमल्स से भी हमें ऊल मिलती है, तो बहुत वो यूज़फुल है, वो भी हमें फूड देते हैं। राइट अबाउट एनी वन ट्री। किसी भी ट्री के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने लिखा है मैंगो ट्री। तो क्वेश्चन है, डज द ट्री फ्लावर? क्या ट्री पे फ्लावर आते हैं? यस, आंसर इज यस, मैंगो ट्री इज अ फ्लावरिंग प्लांट। मैंगो ट्री पे आपने देखे होंगे फ्लावर्स आते हैं, फिर वो फ्रूट्स बनते हैं, वो फिर मैंगोज बनते हैं। तो किसी भी ट्री के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। किसी अदर ट्री के बारे में अगर आप जानते हैं तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर? क्या फ्लावर्स ट्री के ऊपर पूरे साल के लिए रहते हैं? यस, बताओ। आंसर इज नो, द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। तो फ्लावर्स ट्री के ऊपर पूरे साल के लिए नहीं रहते, वो मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल? कौन से मंथ में उनके पत्ते गिरते हैं? आंसर इज मैंगो ट्री इज एन एवरग्रीन ट्री बट यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई विंटर्स दैट इज मिड ऑफ अक्टूबर नवंबर देयर लीव्स फॉल एंड द न्यू वंस कम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। तो मोस्टली अक्टूबर नवंबर में उसके लीव्स जो है, पत्ते जो हैं, गिरते हैं। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्रीज? क्या फ्रूट्स ग्रो करते हैं उस ट्रीज के ऊपर? यस, फ्रूट्स डू ग्रो ऑन अ मैंगो ट्री, है ना। मैंगो ट्री पे फ्रूट्स रखते हैं ना, तभी तो आप मैंगोज खाते हो। किस किस का फेवरेट है मैंगो? मेरा तो बहुत फेवरेट है। नाउ इन विच मंथ्स डू दे ग्रो? कौन से मंथ में वो ग्रो करते हैं? आंसर इज द फ्रूट्स ऑफ मैंगो ट्रीज आर अवेलेबल फ्रॉम मे टू सितंबर। तो अभी अवेलेबल है ना, अभी आप लोग खा रहे हैं फ्रूट्स, मतलब मैंगो आप खा रहे हैं। यस, हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स? आंसर यस, आई हैव ईटन मैंगोज। क्या आपने मैंगोज खाए, ये फ्रूट्स कभी खाए हैं? तो हाँ, मैंने मैंगोज खाए हैं। वाई डू पीपल हंट? क्यों हंटिंग करते हैं लोग? आंसर इज पीपल हंट डाउन एनिमल्स फॉर देयर स्किन, बोन्स, फॉर टेस्टिंग देयर फ्लैश एंड ऑल्सो फॉर फन टू। तो बहुत से लोग हंटिंग करते हैं एनिमल्स की स्किन के लिए, उनके बोन्स के लिए, या उनको खाने के लिए। वो जो मीट होता है, फ्लैश होता है, वो खाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग एंजॉय करने के लिए भी हंटिंग करते हैं। पर इस तरह से हंटिंग करना एनिमल्स की बहुत ही गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स। पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग। व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट? तो कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ एनिमल्स की हम हंटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर उन एनिमल्स की अगर हम हंटिंग करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है। तो क्यों इस तरह से ये रूल बनाए गए, क्यों पनिशमेंट दी गई है? तो आंसर है, पनिशमेंट इज मेड सो दैट पीपल विल नॉट डू हंटिंग एंड दस एनिमल्स वुड बी सेव। तो पनिशमेंट इसलिए दी गई है कि जिससे लोग हंटिंग ना करें और एनिमल्स सेव हो सकें। नेक्स्ट इज, टॉक टू ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट विच बर्ड डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज। जब वो आपके एज के थे तब उन्होंने कौन से बर्ड्स देखी हैं? आंसर इज पैरेट, ईगल, स्पैरो, क्रो, वल्चर एट्सेट्रा। तो ये आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से
पूछना है और वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है और उनके एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस? आंसर इज यस, द नंबर ऑफ स्पैरोज, ईगल्स एंड वल्चर्स हैव बिकम लेस। कुछ बर्ड्स जो हैं कम हुए, वो कौन सी बर्ड्स हैं? स्पैरोज, ईगल्स, वल्चर्स, ये आजकल हमें बहुत कम दिखाई देती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, तो ये ज़रूर सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर? येस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द चीता कैन नॉट बी सी एनी मोर। क्या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अभी दिखाई नहीं देते हैं? तो हाँ, ये कुछ एनिमल्स है जो आजकल दिखाई नहीं देते हैं, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड चीता। Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrows and मैना than he sees today. Can you make two guesses why their numbers have become less? शांति के ग्रैंडफादर बताते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उन्होंने बहुत सारी तरह की बर्ड्स देखी है, जैसे स्पैरोज हैं, मैना है, पर आजकल वो दिखाई नहीं देती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? Answer is the reasons could be hunting and cutting down of trees which have reduced the number of these birds. तो इसके पीछे क्या रीज़न है? उनकी हंटिंग, उनकी शिकार किया जाता है और बहुत सारे ट्रीज को कट किया जाता है। इस वजह से इन बर्ड्स की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। Now next question is the khejri tree was the most common tree that grew in Amrita's village. Which kind of trees can you see a lot of in your area? Name two such trees. Find out more about these trees from your elders. तो अमृता के विलेज में खेजड़ी ट्री ज़्यादातर पाया जाता है। तो ऐसे आपके एरिया में कौन सा ट्री ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है? तो इस ट्री के बारे में आपको फाइंड आउट करना है और लिखना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है। आई ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ टीक एंड मैंगो ट्रीज इन माई एरिया। टीक के बारे में मैंने लिखा है कि ट्री ऑफ टीक इज़ वेरी बिग, इट प्रोवाइड्स पीपल शेड एंड फ्रेश एयर। टीक वुड इज़ एक्सपेंसिव, टीक ट्री डज नॉट गिव फ्रूट, इट्स वुड इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर। तो आपके एरिया में जो भी ट्री ज़्यादा पाए जाते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने टीक और मैंगो ट्री के बारे में लिखा है। तो टीक ट्री बहुत बड़ा होता है, वो शेड देता है और उस पर फ्रूट नहीं लगता है। अब मैंगो ट्री के बारे में देखेंगे। मैंगो ट्री इज़ एन एवरग्रीन ट्री बट यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई विंटर दैट इज़ मिड ऑफ October, November, their leaves fall and the new ones come during the spring season. Their fruits, mangoes, will be available from May to September. Mango fruit is very tasty and its branches are used as firewood. तो मैंने ये मैंगो ट्री के बारे में लिखा है। तो इस तरह से आपको आपके एरिया में जो ट्रीज़ ज़्यादातर दिखाई देते हैं उनके बारे में, किसी भी दो ट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी है और लिखनी है। I hope you enjoy this lesson and understood very well. Okay students, bye bye, take care.